Okay, so we'll solve more questions on thermodynamics, and today we are going to solve questions related to heat engines, मतलब Carnot's engine, then refrigeration, मतलब opposite of heat engine ही है, process is opposite, and few more topics. तो पहला क्वेश्चन मतलब 28 first for today, a Carnot engine working between 300 Kelvin and 600 Kelvin. आपको मैंने बताया था Carnot engine में you have a source of heat, एक सोर्स होता है, एक एडियाबैटिक मतलब नॉन कंडक्टिंग ब्लॉक होता है, एंड देयर इज अ सिंक. ओके, एंड देन देयर इज अ सिलेंडर विथ अ मूवेबल पिस्टन, और इस मूवेबल पिस्टन में एक वर्किंग सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ गैस होता है, समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे मूवेबल पिस्टन है, पिस्टन इज सपोज टू बी massless, frictionless, right? So the source is at higher temperature T1 and the sink is at lower temperature T2. Source has infinite amount of heat, जितना heat चाहिए उतना निकाल लो, temperature doesn't change. Sink is sink of heat, जितना heat देना है दे दो, उसका फिर भी हमेशा वो lower temperature पे ही रहेगा, T2 पे रहेगा. For example, the best example is your vehicle, engine of your vehicle. उस केस में sink is surrounding. तो आपकी गाड़ी जब आप बंद करते हो तो यू फील साइलेंसर के बाजू में जब खड़े रहते हो, साइलेंसर हीट रेडिएट नहीं करता है, साइलेंसर इज जस्ट टू रिड्यूस द नॉइस, बट इंजन हीट्स अप एंड उसका जो हीट है इट गोज टू नेक्स्ट नेबर विच इज सराउंडिंग, दैट इज एनवायरमेंट. ओके, एनवायरमेंट इज सो बिग कि कितना भी हीट दे दो टेम्परेचर डजंट चेंज, राइट? तो याद रखना, और आपको ये भी पता होना चाहिए टेम्परेचर, lower temperature is T2 of the sink, higher temperature is of source, that is 600 Kelvin. It has a work output of 800 joule per cycle, हर एक cycle में. What is the amount of heat supplied to the engine from the source per cycle? So what is the heat input, ऐसा बोला है. So if you remember, you have defined efficiency of a Carnot's engine as work output upon heat input. इसी को आप लिखते हो, अगर याद होगा, इसी को आप लिखते हो 1 minus T2 by T1. ओके, जिसको याद नहीं है तो याद कर लो, बता देता हूं मैं. This was source over here, source at a temperature of T1, then you have sink at a temperature of T2, so T1 and T2. Source से आप heat input लेते हो, then you take work as output, and then the remaining heat goes to the sink. So Q1 amount of heat is taken, W is work, and Q2 is returned. So Q1 equal to W plus Q2, Q1 equal to W plus Q2, so W is equal to Q1 minus Q2. तो आपने यहाँ पे ऐसा लिखा था Q1 minus Q2 by Q1. ओके, हीट इनपुट कहां से आएगा? सोर्स से. कितना हीट लिया? Q1. तो वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट इज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी इज ऑलवेज डिफाइंड एज आउटपुट अपॉन इनपुट. यहाँ पे आउटपुट क्या है? वर्क, और इनपुट क्या है? हीट. तो वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, बट W इज इक्वल टू Q1 minus Q2. तो Q1 minus Q2 by Q1. So this is equal to Q1 by Q1 is 1 minus Q2 by Q1. लेकिन as I told you, heat is nothing but measure of temperature of the system. तो आप Q की जगह पे T भी लिख सकते हो, तो you can write 1 minus T2 by T1. तो ideally आपको ऐसा इक्वेशन मिलेगा 1 minus T2 by T1. ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको क्या पूछा है? How much is the heat supplied? Given W दिया है, yes.
given T1 and T2? Yes, तो आपके पास T1 है, T2 है, W है, you want to find out Q1, so you have to use this much part. So easy. W is how much? 800 upon Q1. 1 minus T2 is 300 and T1 is 600. 1 and 2 1 minus half is half. तो Q1 वहां गया, 2 यहाँ पे आया, तो Q1 is equal to 1600 जूल. और वैसे भी the moment you see T2 by T1, 1 minus T2 by T1, T2 कितना 300, T1 कितना 600, 1 minus half, क्योंकि 300 by 600 is half, मतलब हाफ एफिशिएंसी हाफ, मतलब जितना भी हीट आपने सप्लाई किया है हाफ ही वर्क डन हुआ. तो वर्क डन कितना हुआ था? 800. एज आई टोल्ड यू, वर्क डन इज हाफ ऑफ हीट सप्लाइड. तो अगर वर्क डन 800 है तो हीट सप्लाइड कितना होना चाहिए? डबल. कितना? 1600. है क्या? डन. ऑप्शन नंबर डी खत्म. Next question. The coefficient of performance of a Carnot refrigerator. This is not heat engine. This is heat engine, but in a opposite direction. Okay. आपको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पूछा है. अगर आपको याद होगा, हमने कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को डिनोट किया था बीटा से. It was defined as T2 upon T1 minus T2. The definition of coefficient of performance of a refrigerator. I'm not going to theory of this now because we've already spent a lot of time in theory. So, coefficient of performance of a Carnot refrigerator working between 30 degree and 0 degree is. So T2 0 degree मतलब 273. 30 degree मतलब 303 minus 273. And I also remember कि I told you to check ऊपर T1 है कि T2 है. So I hope you have checked. Okay. So this is 273 by 30. Anyone can say this is how much? 1s and 9s. 3 1s are 3 9s. Option number C. Simple. Next question. A Carnot engine absorbs an amount Q of heat from a source, मतलब reservoir, at an absolute temperature T. मतलब source का temperature आपको बताया है T, and rejects heat to a sink at temperature of T by 3. मतलब T2 is T by 3. The amount of heat rejected is. अभी आपने देखा. How do you define efficiency? 1 minus T2 by T1. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. 1 minus T by 3 upon T. T cancel. 1 minus 1 by 3 is 2 by 3. तो efficiency is 66%. 2 by 3, 0.66. Okay. आपको पूछा है how much is the amount of heat rejected. अभी heat rejected के लिए, but you also know, what you know is efficiency is work output upon heat input. Okay. तो heat input है ये. और मैंने अभी आपको बताया कि वर्क डन इज नथिंग बट Q1 माइनस Q2, मतलब हीट इनपुट माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट इनपुट. तो ये याद रखना वर्क डन कैसे फाइंड करते हो. देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इज Q, मतलब Q1 की वैल्यू कितनी दी है आपको? Q. तो I don't want you to do so lengthy. ये डायरेक्टली आप लिख सकते हो 1 minus Q2 by Q1. Okay. So from these two, from 1 and 2, you will have eta की वैल्यू क्या दी है आपको, मतलब क्या फाइंड किया आपने? 2 by 3. So 2 by 3 equal to 1 minus Q2. Q2 is amount of heat rejected and Q1 is amount of heat absorbed, जिसको इन्होंने बोला है Q. तो I am not writing Q1 now, I am writing Q. सॉल्व करो. ये यहाँ पे आएगा Q2 by Q equal to 1 minus 2 by 3. This is 1 by 3. तो Q2 is equal to Q by 3. तो Q by 3 आ गया. ओके. डन.
वैसे भी और एक शॉर्टकट भी था, इफ यू अंडरस्टैंड, इफिशियंसी की वैल्यू 2/3, मतलब इसका मतलब जितना भी हीट आपने एब्जॉर्ब किया उसका 2/3 वर्क में कन्वर्ट हुआ है, तो बचा कितना, 1/3, कहाँ जाएगा, रिजेक्टेड, तो Q/3 इज रिजेक्टेड, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, a Carnot engine has the same efficiency between 800 Kelvin and 500 Kelvin and x Kelvin to 600 Kelvin। मतलब पहले केस का इफिशियंसी eta1 है और दूसरे केस का इफिशियंसी eta2 है, and they are just telling you eta1 equal to eta2, and you know if they are saying कि it works between, मतलब 800 Kelvin is source temperature and 500 Kelvin is sink temperature, मतलब T1 T2 की वैल्यू दी है, you know what is this, this is 1 minus T1 by T2 or T2 by T1, T2 by T1, this is 1 minus T2 dash upon T1 dash, right, 1 1 cancel, मतलब आपको मिल जाएगा T2 by T1 equal to T2 dash by T1 dash, T2 dash is 600, T1 dash is x, और आपको x फाइंड करने के लिए बोला है, हो गया क्वेश्चन। T2 कितना था 500 और ये कितना था 800 एंड T2 dash कितना है 600, दिस इज x, कैंसल कैंसल, ओके। तो इसको सॉल्व करो, x equal to 600 into 8 by 5, 1 जा 120 into 8, 12, 8 जा 96, 960 option number B. Next question. An ideal heat engine working between temperature T1 and T2 has efficiency eta. The new efficiency if both the source and the sink temperature are double will be. Simple. पहले केस में आपको efficiency मिलेगा 1 minus T2 by T1. दूसरे केस में आपको efficiency मिलेगा 1 minus 2T2 by 2T1. कैंसल कैंसल, तो 1 minus T2 by T1 again, मतलब again eta. So there is no change in the efficiency if both source and sink temperature are doubled, half, quadrupled, दोनों में same change होगा, तो there is no change in the efficiency. अगला क्वेश्चन, an ideal refrigerator has a freezer at a temperature of minus 13 degrees Celsius. The coefficient of performance of the engine is 5. The temperature of the air to which the heat is rejected will be. Coefficient of performance, beta. How do you define beta? T2 upon T1 minus T2, where T2 is the lower temperature, या फिर TC, आप ऐसा लिख, हमने ऐसा लिखा था T colder upon T hotter minus T colder, वैसा याद रख लो, क्या फर्क पड़ता है, doesn't matter. तो by the way this value is 5 बोला है, T2 ये -13 डिग्री है, मतलब केल्विन में कितना 260, this is 260, okay. Of course I will write down here also T1 minus 260, but you know how much is this? $520 का half 260, so 52 into 5 is 260, okay. So you will have T1 minus 260 equal to 52, so you will have T1 equal to 52 plus 260, मतलब this will be 312 Kelvin. 312 Kelvin को आप लिख सकते हो in degree Celsius by subtracting 273 डिग्री सेल्सियस। ज्यादा सोचना नहीं, आखिरी में एक 9 आएगा, आखिरी में एक 9 है, 39 डिग्री सेल्सियस। Next question. Two identical containers A and B
with frictionless pistons contain the same ideal gas at the same temperature and the same volume V. So A or B, these containers are fitted with frictionless pistons and they have same temperature, same volume and same ideal gas. मतलब molecular weight will be the same. Okay, the mass of the gas in A is Ma. मान सकते हो एक में ऑक्सीजन है तो 2 किलोग्राम है, दूसरे में ऑक्सीजन है 3 किलोग्राम है, तो मास इज Ma and that of B is Mb. The gas in each cylinder is now allowed to expand isothermally. Isothermal expansion में अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, तो प्रेशर विल डिक्रीज. ओके, सो the gas in each cylinder is now allowed to expand isothermally to the same final volume. मतलब दोनों केस में फाइनल वॉल्यूम भी सेम, इनिशियल भी सेम, फाइनल भी सेम. The changes in the pressure in A and B are found to be delta P and 1.5 times of delta P. Don't misunderstand the question because आप बोलोगे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा, यहाँ तो 1.5 दिया है, राइट? वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होना चाहिए? कम. तो फिर 1.5 तो ग्रेटर देन 1 हो गया. डू नॉट मिसअंडरस्टैंड. अगर पहले चेंबर में डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर है तो दूसरे चेंबर में इन टर्म्स ऑफ पहले चेंबर का चेंज इन प्रेशर दिया है आपको, राइट? तो इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस. दिस इज डिक्रीज इन प्रेशर of first chamber, this is decrease in pressure of second chamber in terms of first chamber, okay, respectively. Then what is the relation of masses? So how to solve this? It's a simple, very simple question. कैसे solve करोगे इसको? हम लोग चेंबर वाइज बात कर लेंगे. पहले तो चेंबर नंबर 1 मतलब चेंबर जिसमें A गैस है. तो what will you do here? Pressure is changing, yes, ideal gas equation, but pressure is changing मतलब delta P. You have to decide यहाँ पे फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल लिखेंगे या इनिशियल माइनस फाइनल लिखेंगे. वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, मतलब इनिशियल प्रेशर फाइनल से ज्यादा हो, राइट? तो P इनिशियल माइनस P फाइनल. ओके, सिर्फ उल्टा लिखोगे तो माइनस साइन आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर. करके देखो, आपने उल्टा भी लिखा तो डजंट मैटर, यू शुड गेट अ नेगेटिव साइन, दैट्स इट. ओके, व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? क्योंकि दोनों गैसेस क्या है? आइडियल है. PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT. तो P इज nRT बाय V, nRT बाय V. तो nRT बाय V. R कांस्टेंट, T दोनों में सेम था, V दोनों में सेम था. Na क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स वेयर डिफरेंट, राइट? करेक्ट. थोड़ा सा सोच के, हाँ, अभी फिर अदरवाइज चेंबर 1 में आपने गैस ऐड किया क्या? नहीं. गैस निकाला? नहीं. तो व्हाई विल यू राइट Na इनिशियल Na फाइनल? नो, राइट? तो थोड़ा सा समझना. व्हाट वाज द फाइनल वॉल्यूम? देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, आप कौन से चेंबर की बात कर रहे हो? ए की, राइट? डिड वी टॉक अबाउट बोथ चेंबर्स टुगेदर? नो. तो फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर Na, ऑफ कोर्स Na, लेकिन N विल बी द सेम. तो यहाँ पे भी Na, क्योंकि पहला चेंबर हो या दूसरा चेंबर हो, आपने गैस का अमाउंट चेंज नहीं किया. तो nRT बाय फाइनल वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम? 2V माइनस nRT बाय इनिशियल वॉल्यूम वाज V. तो ये आएगा आपका nART बाय V कॉमन. हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, राइट? तो माइनस हाफ nART बाय V. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो सिर्फ एक नेगेटिव आएगा, आना भी चाहिए. नेगेटिव टेलिंग यू दैट प्रेशर इज डिक्रीजिंग बिकॉज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग आइसोथर्मली, तो प्रेशर शुड डिक्रीज. तो आपको मिल गया डेल्टा P, राइट? डेल्टा P कौन सा चेंबर का है? A. वेरी गुड. देन डेल्टा P इक्वल टू, बट Na नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. यहाँ पे Ma मत लिख देना क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इज सेम बिकॉज द टाइप ऑफ गैस इज द सेम इन बोथ, सिर्फ मास इज डिफरेंट. एज आई टोल्ड यू, उसमें एक में 1 किलोग्राम है, दूसरे में 2 भी हो सकता है, राइट? तो दिस इज ऑल यू हैव अबाउट चेंबर A. Now let us talk about chamber B.
तो चेंबर बी का जो केस है, चेंबर बी का जो केस है, इसमें सिर्फ डेल्टा पी की जगह पे 1.5 डेल्टा पी लिखोगे। अगर कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो इसको डेल्टा पी ए बोलो इनिशियली, और बाद में डेल्टा पी ए की जगह पे डेल्टा पी डालो, इसको डेल्टा पी बी बोलो इनिशियली। अगेन सेम थिंग, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा पी भी कितना दिया है, 1.5 डेल्टा पी। फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर nRT, लेकिन कौन सा n, nb, RT बाय 2v माइनस nb RT बाय v। ओके, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन you can take out again 1.5 delta p equal to NaRT by v common, nb सॉरी RT by v कॉमन, और ये भी हाफ माइनस वन मतलब माइनस हाफ, करेक्ट, गुड। देन 1.5 डेल्टा p इक्वल टू, अभी यहाँ पे nb की जगह पे आप लिखोगे, व्हाट विल यू राइट हियर, mb अपॉन मॉलिक्यूलर वेट RT बाय v, और ये 2 को यहाँ पे लेके आता हूँ और 3 कर देता हूँ, तो दिस विल बी 3। ओके, then you have to divide. This is equation number 2, this is equation number 1, dividing 1 and 2. If you divide 1 and 2, so delta p upon 3 delta p equal to half ma by m RT by v upon, this is माइनस माइनस जाएगा, ये माइनस जाएगा वो, so don't worry about that, RT by v, cancel 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 cancel, right? okay, तो डेल्टा पी भी कैंसल, तो 1/3 इक्वल टू माइनस माइनस भी गया, ma by 2mb, तो 2mb इक्वल टू 3ma, so therefore 3ma equal to 2 times of mb, 3ma equal to 2mb। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, सिर्फ आपको चेंज इन प्रेशर का इक्वेशन लिखना है, फाइनल माइनस इनिशियल प्रेशर, प्रेशर यू हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम nRT by v, but v final is 2v, यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम इज v। You will get equation for delta P in chamber A. Similarly, find out delta P in chamber B. Divide these two and you get your final answer. Next question. A monatomic ideal gas initially at temperature T1 is enclosed in a cylinder fitted with a frictionless piston. The gas is allowed to expand adiabatically to a temperature T2 by releasing the piston suddenly. If L1 and L2 are the lengths of the gas column before and after the expansion respectively, the ratio of T1 by T2 is given by. Good question. तो ऐसा है, easy question है, you have let us say a container, और इस कंटेनर में आपके पास एक गैस है, then you have a piston at this position, initial position of the piston, the length was L1, then you suddenly release this piston and the gas expands. The new length of the piston, I mean the new length of the chamber, not of the piston but of the chamber, is L2. Initial length of the chamber L1 है, final length L2 है। आपको पूछा है what is T1 by T2 in terms of L1 by L2, right? बाय द वे, मैं इसको सिर्फ इधर रखता हूं क्योंकि आपको समझेगा कि एरिया ऑफ द पिस्टन ए है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ गिव्स यू वॉल्यूम, राइट? सो यू जस्ट नीड टू नो दिस, राइट? तो अभी आई कैन डिलीट दिस फिगर। टेम्परेचर का रिलेशन लेंथ के साथ, मैंने अभी भी बताया एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम। So do you remember TV raised to gamma minus 1 equals to a constant? So T1 V1 raised to gamma minus 1 equal to T2 V2 raised to gamma minus 1. तो आपको मिलेगा यहाँ पे T1 by T2
equal to V2 by V1 raised to gamma minus 1. Okay, then volume V2 is area, अभी A2 A1 मत लिखना क्योंकि एरिया ऑफ द पिस्टन तो एरिया ऑफ द पिस्टन है, सिर्फ पिस्टन ऊपर शिफ्ट हुआ तो A इंटू L2 अपॉन A इंटू L1 रेज टू गामा माइनस 1. मोनो एटॉमिक 5/3, gamma is 5/3, cancel and cancel. So T1 by T2 equal to 5/3 minus 1 is 2/3. So L2 by L1 raised to 2/3. L2 by L1 raised to 2/3. Option number D. Next question. This type of question we have already solved, but again, work done by a system under isothermal change from a volume V1 to V2 for a gas which obeys van der Waals equation. देखो मतलब रियल गैस है. आइडियल गैस में if you remember, molecules of the gas are non-interacting, but in real gas they do interact, right? And ideal gas equation में volume of the gas molecules, right? If you एक statement था अगर याद होगा तो the actual volume occupied by the gas is very small compared to the real volume of the container. तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम के टर्म में एक माइनस दिखेगा, so this is the real gas where you are subtracting the actual volume occupied by the gas from the total volume of the container, and because of the interaction between gas molecules you have additional pressure term, addition P plus something. तो बेसिकली अगर मैं a n स्क्वायर बाय v नहीं लिखूंगा तो p बचेगा, मैं बीटा n लिखूंगा तो v आएगा, तो pv इक्वल टू nRT रियल गैस. ये कौन सा है, सॉरी आइडियल गैस, ये कौन सा है, रियल गैस है. तो बस इतना ही है, बाकी तो कुछ there is nothing more here. So isothermal change में what is the formula of work done? nRT. Work done in isothermal change process is given by nRT, natural log of V2 by V1, right? Now आपके पास एक इक्वेशन है, ओके तो इसमें वर्क डन कैसे फाइंड करोगे, डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, you cannot do directly, तो you will have to find some other solution. आपको याद है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन वाज PdV, total work done from initial volume V1 to V2 was integration PdV, right? If you remember, now V1 to V2, do you see pressure? यहां से प्रेशर का एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा और उसको वहां सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. फ्रॉम दिस गिवन इक्वेशन यू हैव टू मेक अ इक्वेशन ऑफ प्रेशर. सो व्हाट यू कैन डू इज, ये जो V माइनस बीटा एन है इसको डिवाइड कर देता हूं, तो क्या मिलेगा मेरे पास, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी इक्वल टू nRT बाई V माइनस बीटा एन, करेक्ट? तो यहां से आपको प्रेशर का इक्वेशन मिलेगा P इक्वल टू nRT V माइनस बीटा एन माइनस ए एन स्क्वायर बाय पी. ओके, तो ये जो आपके पास प्रेशर का इक्वेशन आया, इस प्रेशर के इक्वेशन को आप यू विल सब्स्टिट्यूट हियर. तो क्या था, nRT V माइनस बीटा एन माइनस ए एन स्क्वायर बाय V, n square by V dV, right? So now what you will do is separate integrals. पहले टर्म का इंटीग्रेशन अलग से, दूसरे का अलग से. तो पहले टर्म का इंटीग्रेशन जब करोगे तो nRT कांस्टेंट, nRT आउटसाइड, इंटीग्रेशन. अभी V1 V2 यहाँ लिखना है, यहाँ लिखो, या तो फाइनल एक ब्रैकेट देके कर दो, डजंट मैटर.
इट्स अप टू यू, यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, dv अपॉन v माइनस बीटा एन। dv को पहले टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर पहले का इंटीग्रल किया, उसमें से कांस्टेंट बाहर निकाला, v माइनस बीटा एन बाहर मत निकालना क्योंकि यू आर इंटीग्रेटिंग ओवर dv, और वो v माइनस बीटा एन बाहर निकाल लिया तो आपने इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है उसको ही बाहर निकाल लिया, तो यू हैव टू कीप दिस हियर, माइनस ए एन स्क्वायर इज कांस्टेंट, सेकेंड टर्म में dv बाय v, okay, so this is what you will have. Now you need to know log of nRT, log of v minus beta n, that's it. Integration 1 upon f of x dx is equal to log of f of x upon derivative of f of x, अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन होता है, डेरिवेटिव्स में मल्टीप्लाई होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ v माइनस बीटा एन विद रिस्पेक्ट टू v, लेकिन v का डेरिवेटिव 1, बीटा एन तो कांस्टेंट है, मतलब नीचे 1 ही आएगा, वो लिखेंगे नहीं, राइट, so there will be 1 only, so I'll not write down minus a n square log of, पक्का log of, या फिर you will while integrating you will take this here, I'm asking you, okay, and then x raised to n का इंटीग्रेशन, हाँ तो v raised to -1 plus 1 0 हो जाएगा, तो याद रखो this is nothing but log of इंटीग्रेशन आएगा log of v, करेक्ट, अपॉन डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज 1, तो ये पता होना चाहिए फ्रॉम v1 टू v2, v1 टू v2, अभी सब्स्टिट्यूट करो, अभी एक काम करेंगे, यू कैन नॉट टेक आउट एनीथिंग कॉमन एनीवेज, तो अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो एंड लोअर लिमिट, तो दिस इज इक्वल टू nRT, पहले टर्म में log of v2 माइनस बीटा n माइनस nRT log of v1 माइनस बीटा n, ओके, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पहले टर्म का माइनस, क्योंकि बीच में क्या है माइनस ए एन स्क्वायर लॉग ऑफ v2 माइनस ए एन स्क्वायर लॉग ऑफ v1 दूसरे टर्म का, इसमें से nRT आप निकाल लोगे कॉमन, फिर आपके पास बचेगा log of v2 माइनस बीटा n माइनस log of v1 माइनस बीटा n, बट log of b माइनस log of a is log of b by a, तो log of v2 माइनस बीटा n अपॉन v1 माइनस बीटा n माइनस सेम story an square log of v2 by v1, so this should be the equation for work done, तो देखते हैं ये आता है कि नहीं, जस्ट अ मिनट, ऐसा तो आना चाहिए, nRT log of, ओके, nRT log to the base 10 है, ठीक है, ए भी है, ठीक है, nRT log of v2 माइनस बीटा n अपॉन माइनस बीटा n, फर्स्ट टर्म यस, माइनस 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 नहीं है, ओके, जस्ट अ मिनट, तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है, चेक करेंगे, नो इश्यूज, तो माइनस नहीं दिख रहा है, मतलब सेकेंड टर्म के इंटीग्रेशन में कुछ गड़बड़ है, पहला गुड, तो पहला वाला यू विल हैव इधर दिस और दिस, मतलब कम से कम इतना तो पक्का है कि ऑप्शन नंबर ये और ये हो नहीं सकता, अब इन दोनों में से यही आएगा वैसे, क्योंकि ए यहाँ पे क्या है बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, हमने ए लिखा है दैट इज अल्फा, ओके, तो फॉर श्योर आंसर इज ए, सेकेंड टर्म को नहीं करते हुए भी हमको मिल गया, लेकिन ऑफ कोर्स यू शुड गेट करेक्ट आंसर, सो व्हाट वेंट रॉन्ग, जस्ट लेट अस सी, तो ये
करेक्ट था, देन इसको वहां पे भेजा तो ये भी करेक्ट है. इफ दिस इज ऑल्सो करेक्ट, P nRT reverse beta n, okay, this is also correct. अल्फा को A बोला है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. A n square by V, this is also correct. dV यहाँ पे आ गया and this is V. They made a mistake. Can you guess which mistake? What is integration of V? V square by 2. What is integration of 1 by V square? 1 by V square. अरे सिंपल है, सिंपल. वेट, हाउ डू, हाँ, dV by V square is V raised to minus 2 dV. क्या आता है ये? What is integration? Minus 1 by V. करेक्ट, माइनस 1 बाई वी. ऐसा अगर ऐसा लोगे तो याद रखना इसके साथ एक ए एन स्क्वायर, मतलब अल्फा एन स्क्वायर था, मैंने ए लिखा है, डजंट मैटर, राइट. तो हियर यू विल गेट दिस एज माइनस ए एन स्क्वायर बाय वी बिटवीन V1 एंड V2. तो दिस विल बी माइनस ए एन स्क्वायर 1 बाय वी V1 टू V2. This is equal to, मैं माइनस, I don't want minus, I don't like minus, तो V2 and V1. तो यह आ जाएगा a n square 1 by upper limit minus 1 by lower limit. तो this will be a n square V2 minus V1 upon V1 into V2. पक्का ये लिखा होगा उन्होंने, for sure. You see, मतलब they have, जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, while integrating they did wrong. मतलब बेसिकली गलती से, बाय मिस्टेक, यहाँ पे v स्क्वायर अगर आता नीचे तो you will get, so what we did is not wrong, the question itself is wrong. Okay, so you have to realize this also. इंटीग्रेशन याद होगा तो यू विल अंडरस्टैंड. अगर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही नहीं पता तो फिर देन इट इज अ ट्रबल. सो एनीवेज, दैट्स इट फॉर टुडे एंड वी विल डू वन थिंग. आई विल करेक्ट दिस. तो व्हाट आई विल डू इज, इसको हम कर लेंगे करेक्ट. हम बोलेंगे कि नहीं ये गलत है, तो जो सही है वो लिखेंगे. व्हाट इज राइट? What I'm getting is minus a n square log to the base e of V2 by V1. Done. So that's it for today.